अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो अली? बिल्कुल सही सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। लास्ट टाइम मिस कर गए थे तो। जी सर। सर। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? खैरियत से हो? जी सर, आपने ये अच्छा किया कि बीच में 1 घंटे का गैप आ गया, बिकॉज अरे हाँ भाई। गैप हो जाता है ना तो हाँ याद भी और आपको भी बोलना नहीं हाँ पड़ेगा सही। कंटिन्यूसली। हाँ तो इंशाल्लाह होपफुली मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँगा। So let us begin with uh, where यस सर। we could not record. सर, हम एग्जांपल्स कर रहे थे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी Yes, I will come to that. We discussed about what is uniform continuity and when a function is not uniformly continuous. There are results which tell us that if a function is continuous over a closed interval, then it is also uniformly continuous at that interval, but only in closed interval. If the interval is not closed, continuity may not lead to uniform continuity. We were discussing some examples and we were stuck up in one of the examples. And that example was this. So I will reconsider our discussion on this example, and I will go to the whiteboard. मैंने वैसे तो WhatsApp किया था तुम लोगों को, लेकिन I consider this example again. The given function that we have to explore for uniform continuity was this function. So we explored this idea that if we take two values of x and y are two values in the domain, and whether this remains less than epsilon when x minus y is less than delta. So we consider this structure x upon 1 plus x square minus y upon 1 plus y square mod. Try to simplify this. The simplified form tells us that it can be written as x plus xy square minus y into x square y divided by 1 plus x square 1 plus y square mod. And then what we consider here is one modification that I'm considering here. कि मैं प्लस एक्स वाई कॉमन ले रहा हूँ, एक चीज जिसकी वजह से इन दो टर्म्स में से वाई माइनस एक्स आएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर mod, so that out of this I take x minus y common. You will say that how we can do that? Yes, we can do that by using triangular inequality, that mod of a plus b is less than or equal to mod of a plus mod of b whole upon mod of 1 plus x square into mod of 1 plus y square. After that,
In this mod, whether I write down y minus x or x minus y doesn't make any difference. So this structure leads to x minus y into mod of 1 plus xy upon 1 plus x square into 1 plus y square. मैंने जो व्हाट्सएप किया था उसमें ये किया था, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो अलजेब्रिक पार्ट है, this is bounded 1 plus xy whole divided by 1 plus x square into 1 plus y square. This is bounded between 0 and 1. Now, how can I make this statement with such surety? Is that x and y are very close together. When x is close to y, in fact, this structure is 1 plus x square upon 1 plus x square whole square. So this cancels with this, and this is only 1 upon 1 plus x square when x and y are very close together. And we can see that x square है ना यहाँ पे, तो x की जो smallest value है, x की जो smallest value है, that is 0. यानी इस part की smallest value 0 है. That will give you this whole thing equal to 1. और x की largest possible value infinity, and that will make this thing infinity. तो वो जो 4/5 और confusion आ रहा था ना, so उन पूरे की जगह अब मैं ये कह रहा हूँ कि x upon 1 plus x square minus y upon 1 plus y square turns out to be less than or equal to mod x minus y into the largest value of this. When x and y are very close together, the largest value of this is this. So if I consider this to be less than epsilon, that means x minus epsilon, x minus y is also less than epsilon. That means epsilon and delta are same, and that makes this function continuous for all possible values of x. So this is what kind of continuity? Uniform continuity for all x belongs to the set of real numbers. Now, anyone considering this thing कि मैंने ये boundedness जो है इस पूरे expression की कैसे evaluate कर ली? Okay, there are various ways. One is this that I have demonstrated. When x and y are very close together, this is like 1 plus x square. Denominator is 1 plus x square into 1 plus x square. So this simplifies to this thing, and that gives me the bounds of this structure. So uniform continuity में जब भी हम ये approach इस्तेमाल करेंगे, ये वाली, तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि out of this किसी तरह x minus y mod अलग हो जाए और बाकी जो कुछ भी है, like here, बाकी जो कुछ भी है उस वो bounded हो, और bounded means having finite infimum and finite supremum. तो if we can establish that, तो कुछ लोग अभी भी confuse होंगे. One method, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंप्यूटेशनल वर्क जो है उसको अक्सर बेशतर बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो लेट मी शो यू कि फॉर कंफर्मेशन, वैसे तो वहाँ नजर आ रहा है पूरी तरह से. लुक एट दिस. सर जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन. यस सर, जो थर्ड स्टेप में आपने किया वो जो किस तरह से आपने किया कि जो राइट हैंड साइड है दैट इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया था तो आई कुडंट हियर दैट. ये वाला स्टेप, ये वाला जी step. सर, ये वाला, और इसके बाद वाला भी कि x माइनस वाई मॉड पहले ये समझ लो कहाँ चला गया. ये देखो, इट इज लाइक a plus b mod, right?
और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहती है दिस इज ऑलवेज लेस देन। यस सर। तो न्यूमरेटर में मॉड सेपरेट किए जिसकी वजह से ओके ठीक है। अब जो न्यूमरेटर में मॉड सेपरेट किए तो ये y माइनस जी जी समझ में आ गया। ठीक है, मैंने कहा ये समझ लो, उसके बाद बाकी जो स्टेप जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आई वाज ट्राइंग टू शो यू द कंप्यूटेशनल वर्क फॉर मेकिंग श्योर कि ये रियली बाउंडेड है। वैसे तो यहाँ से इस अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन से कि x एंड y आर वेरी क्लोज टुगेदर, देन दिस रिड्यूसेस टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बॉन्ड्स वेरी क्लियर हैं कि x की जो स्मॉलेस्ट x स्क्वायर की स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 0, दैट मेक्स दिस होल थिंग लेस देन 1, and when x is very very large, then denominator is very very large and this thing is very very small, that is small but positive, so 0 से 1. लेकिन मैंने इसको कंप्यूटेशनली कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा एक्सेल का काम किया। कैसे काम किया? x की वैल्यू ली। कैन यू सी दिस एक्सेल वर्कशीट? यस सर। x की वैल्यू ली, उसके बाद y क्लोज टू x लिया, कितना? 0.01 का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। उसके बाद xy कैलकुलेट किया, उसके बाद 1 प्लस xy कैलकुलेट किया, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया, फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट किया, और फिर पूरा स्ट्रक्चर जो वो मॉड के अंदर था वो कैलकुलेट किया, और फिर उसको प्लॉट किया। मैंने ये कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट किया? 0.1 के डिफरेंस से मैं चल -5 से लेके 5 तक, और द ट्रेंड इज वेरी क्लियर दैट इज शोन इन दिस ग्राफ। कि y की उस पूरे स्ट्रक्चर की 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो 1 के करीब आ रही है, और मिनिमम दोनों साइड्स पे एक्स एक्सिस जो है एसिम्प्टोट है फॉर दिस स्ट्रक्चर। मगर इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद दिस वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर वर्क टू दिस काइंड ऑफ वर्क, कि from fx minus fy या fx1 minus fx2, x minus y x minus x1 minus x2, ये इसमें से फंक्शनल एक्सप्रेशन में से ये एक्सट्रैक्ट करना है जो यहाँ पर जाकर हो गया। इसके अलावा बाकी सब कुछ जो है इसको हमने देखना है कि ये बाउंडेड है कि नहीं। So this is what I wanted to share with you people. Going back to these notes, x square function is not uniformly continuous over the interval 0 to infinity. याद रखिएगा कि x square is a continuous function, और मैं जो इंटरवल ले रहा हूँ ये क्लोज नहीं है, क्योंकि हम एक थ्योरम देख चुके हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन ओवर ए क्लोज इंटरवल इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, और यहाँ हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये इंटरवल क्लोज इंटरवल नहीं है, लेकिन हम इसका अच्छा वुड यू अलाउ मी टू चेंज दिस क्वेश्चन अ लिटिल? यस सर। जी सर। तो जरा इसको चेंज करके देखते हैं, और ये सारा काम जो अभी किया था उसको दोहराने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आई एम कंसीडरिंग इज fx is equal to x square plus 4, और इंटरवल हमने क्या लिया था? 0 to infinity। अच्छा जी, अब मैं करता हूँ fx1 माइनस fx2 पे वर्कआउट करता हूँ। मुझे क्या शो करना है? हाँ भाई, it's not uniformly continuous. Not uniformly close, but अच्छा, now this can be written in terms of x1 square plus 4, यानी फंक्शन की वैल्यू एट x1 माइनस फंक्शन की वैल्यू एट x2 स्क्वायर माइनस 4, इसमें से 4 कैंसिल हो जाएगा। सवाल वही का वही है, इनफैक्ट एक कांस्टेंट ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, एंड दैट कैन बी फैक्टराइज्ड x1 माइनस x2, और प्रोडक्ट में मॉड ऐड सेपरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
Now look at this. X minus y, yeah, x1 minus x2, they are close together. Okay, when they are towards this side, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर थ्रू आउट द इंटरवल क्या ऐसा हो रहा है? तो हम देखते हैं कि x1 प्लस x2 इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बट व्हाट्स द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ओवर द इंटरवल ऑफ दिस स्ट्रक्चर? Infinity. So not bounded. When this is not bounded, I can say that fx1 minus fx2 is not less than some small number. क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है इसका ये कंपोनेंट इन्फिनिटी पे जा रहा है. आप कहेंगे ये कंपोनेंट, तो भाई अगर ये बाउंडेड होता तो फिर वो बाउंड जो इसका अपर बाउंड है वो मैं यहाँ रखकर फिर ये दिखाता कि ये लेस देन एप्सिलॉन है. लेकिन चूंकि इससे मैं ये नहीं निकाल सकता, ये आ रहा है इससे. एंड व्हेन x1 and x2 are very close to 0, the denominator is becoming very large. Epsilon divided by a very large number is very small number. But when x1 and x2 are large, then this is very small and I cannot establish. अगर ये एक नंबर से छोटा होता या एक नंबर से बड़ा यानी बाउंडेड होता, तब मैं वो नंबर इंट्रोड्यूस कर देता यहाँ पे. So this is not bounded above, so this cannot be less than some small number for all x1, x2 belonging to the interval 0 to infinity, and that means not uniformly continuous over the interval 0 to infinity. ठीक है? I hope you get this. Sir, I have a question. Yes, please. सर जब आप कह रहे हैं कि x1 और x2 जब क्लोज टू 0 होंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? जब 0 से क्लोज होंगे तो denominator will be very small and this whole number will become large. Large. And when x1 and x2 will be close to infinity? Then denominator is very small. Denominator is very large and this whole thing is very, very small. So बात ये है कि हमें इस स्ट्रक्चर के लिए हमें सुप्रीमम नहीं मिल रहा. इसका मतलब है इस 1/, इसके लिए मुझे इन्फीमम नहीं मिल रहा. सो अगर मुझे इन्फीमम और सुप्रीमम मिल जाते हैं तब तो मैं यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ जो कुछ भी है उसको एक्स इंडिपेंडेंट करके एक नंबर से रिप्लेस कर दूंगा और उसको जो कुछ रिजल्ट आएगा उसको डेल्टा कह दूंगा, क्योंकि इन दैट केस इट विल बी, यानी अगर ये एक फाइनाइट नंबर आ जाए फॉर एवरी चॉइस ऑफ x1 and x2 in this interval, for every choice, तो every choice के लिए तो ऐसा नहीं हो रहा. इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, हमें डेल्टा नहीं मिल पा रहा. अगर मैं इसको जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं डेल्टा कहूँ तो डेल्टा इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ x, which is a violation for the basic concept of uniform continuity. हमने जो इंट्रोडक्शन दिया था वो उसमें ये कहा था कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मीन्स कि हमें डेल्टा जो है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा हो, किसी और फैक्टर पे डिपेंड ना कर रहा हो, और फैक्टर्स जो हैं वो वैल्यूज मैं इसके ग्राफ को मैं अपने जहन में रखूँ तो ये x² प्लस बेसिकली तो x² था, मैंने x² प्लस 4 कर दिया है. तो ये ग्राफ जो है इट्स गोइंग अबव एंड अबव. सो हियर वेरी क्लोज वैल्यूज ऑफ x and the corresponding values of phi will be large at large distance. So epsilon is not going to be small. So epsilon, any difference between function values is not small for every xy belonging to this whole interval. I hope this makes it clear. सर अगर ये बाउंडेड होता तो फिर यूनिफॉर्म बाउंडेड होता तो हमें एक नंबर मिल जाता, उस नंबर को हम यहाँ रिप्लेस करते,
ठीक है। मैंने इस प्रॉब्लम को शायद यूं भी डिस्कस किया था कि एक्स स्क्वायर ओवर इंटरवल 1 to 2, इन विच केस x1 minus x2, x1 plus x2 को लेस देन एप्सिलॉन लिया था, और फिर ये कहा था कि ये जो वैल्यू है इस इंटरवल पे बाउंडेड है कि नहीं। अगर x1 और x2 वेरी क्लोज हैं और इस एंड के करीब हैं तो 1 + 1 2, सो मॉड x1 plus x2 remain always greater than 2 but less than 4। तो ये नंबर चूंकि लेस देन 4 है तो मैं फिर कहता कि मॉड x1 minus x2 into 4 is further less than epsilon, and that would have led to the result that x1 minus x2 is less than epsilon by 4, and that is equal to delta, which is independent of any other thing except for epsilon. Get it? सर मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने अपर बाउंड जो है वो 4 कैसे कर दिया, क्योंकि x स्क्वायर जो है उसका अपर बाउंड ओ मेरा बेटा, अब ये देखो किस इंटरवल पे काम कर रहा हूँ मैं। तो सर ये तो x स्क्वायर का है तो x का तो √2 होना चाहिए ना बेटा इसके बाउंड्स, नॉट एक्स स्क्वायर के बाउंड्स। ये चीज जो है मैंने यहां से उठाई है, बाकी काम तो सेम है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स वाई स्क्वायर में। तो मैंने ये दिखाया इस पूरी व्हाइट बोर्ड पे कि इस इंटरवल पे ये बाउंडेड नहीं है, लिहाजा एप्सिलॉन दिस कैन नॉट बी लेस देन सम स्मॉल नंबर। जबकि अगर मैं इंटरवल बाउंडेड ले लिया तो मेरी थ्योरम कह रही है कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ए बाउंडेड इंटरवल हैज टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। मैंने सिर्फ इस फैक्ट को फॉर्मल लैंग्वेज के जरिए इस्टेब्लिश किया है, और इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया है, फिर वही कहूँगा कि इस चीज़ के अंदर से मैंने एक तो अलजेब्रिकली ये सेपरेट करना है, जब ये सेपरेट करूँ तो बाकी जो कुछ बचा उसको देखूं कि वो बाउंडेड है कि नहीं। अगर वो बाउंडेड है तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा उसके अपर बाउंड या सुप्रीमम से उसको रिप्लेस कर दूंगा, दैट विल रिमेन लेस देन एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय दिस, जैसे कि यहाँ पे आई रिपीट ये जो बाउंड लिया गया है वो डोमेन वैल्यूज के लिए लिया गया है, नॉट फॉर द रेंज वैल्यूज। x1 and x2 in this interval can be very close to 1 both, in which case this value will be close to 2 but never less than 2. And when x1 and x2 are very close to right hand point, then they will sum up to a number very close to 4 but not exceeding 4. So this is the basic trick. And I think I should not be repeating things again and again. 1 upon x square. Let me work it out again instead of discussing it here, katapita. Let me work it out here on the whiteboard again. ठीक है? मुतालबा आया था ना सर, व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया कीजिए। अच्छा जी, अब फंक्शन मेरे पास है 1 upon x स्क्वायर। अब मैं इसको मुख्तलिफ इंटरेस्ट पे डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, लेकिन मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैं उससे इसकी एक्सप्लोरेशन शुरू कर रहा हूं। x and y both are pre-images. So that makes it 1 upon x square minus 1 upon y square, which algebraically simplified makes y square minus x square upon x square y square, which gives me x minus y or y minus x doesn't make any difference, लेकिन मैं इसके फैक्टर्स इनिशियली सीधे साधे लिख दूं, x square plus y square mod. Now
मेरे पास y माइनस एक्स या x माइनस वाई आ गया, मुझे चाहिए ये लेस देन एप्सिलॉन. Let us explore x plus y divided by x square y square mod. ये चीज बाउंडेड है कि नहीं, तो मुझे ये फैसला करना पड़ेगा कि मैं किस इंटरवल पे काम कर रहा हूँ. सो अभी भी मैं इंटरवल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा. अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि लेट अस कंसीडर x एंड y टू बी वेरी क्लोज, एंड दैट मीन्स x plus y will be close to 2x, and x square, y square will be very close to x power 4. And that will mean mod of x plus y upon x square plus y square is almost 2x upon x power 4, which is equal to 2 upon x cube. अब वो पार्ट जो y माइनस एक्स या x माइनस वाई के साथ लगा हुआ है वो बाउंडेड है या नहीं है, मैं इससे डिसाइड कर सकता हूँ. बट अब बाउंडेडनेस के लिए मुझे इंटरवल चाहिए. ओके, लेट मी कंसीडर इंटरवल 2 to 5. So 2 upon x cube. What's the smallest value of this over the interval 2 to 5? 2 over 125? 2 over 125. So 2 upon 125. And what's the largest value of this? 4/8. Yes. So bounded. 1.4. इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकता हूं कि x माइनस वाई इंटू 1/4 इज लेस देन एप्सिलॉन. इस स्ट्रक्चर की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू इस इंटरवल पे रख दी हमने, एंड दैट मेक्स मॉड x माइनस वाई लेस देन 4 एप्सिलॉन, जो कि हमारा डेल्टा हो गया. This whole thing. सर एक दफा वापस समझा देंगे x माइनस वाई कहाँ से आया? अच्छा सही. ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये 1/4 से छोटा रहता है, तो इस पूरे पार्ट को 1/4 से रिप्लेस कर दिया. तो पहला स्टेप तो ये होगा कि दिस थिंग इज मतलब दिस थिंग इज लेस देन दिस एंड दिस अल्टीमेटली सॉरी लेस देन एप्सिलॉन. अच्छा जी, मैं एक और इंटरवल कंसीडर करता हूं 10 to 100. So up to upon x power 3 के बाउंड्स क्या हैं, you can find out. Complete this yourself. अब मैं इंटरवल लेता हूं 0 to 1. पहली बात तो ये कि मैंने ये ऐसा इंटरवल लिया जो कि क्लोज इंटरवल नहीं है, राइट? और फिर मैं 2 upon x cube के बारे में सोचूं. When x is very very small, what will be 2 upon x cube? When x is very, very close to 0, that is very, very small, what will be 2 upon x cube? Small or large? Very large value हो जाएगी. Very large. So very very large, infinity हो जाएगा. हाँ, but when x यानी इसकी smallest value जो है वो 2 है, तो unbounded. और जैसे ही unbounded आया, मैंने फौरन कहा कि भाई ये fx1 या fx minus fy जो है, this cannot be a small number. So here we had this result that leads to uniform continuity. This will also be uniform continuity there, but here not uniform continuous. वही function है.
मुख्तलिफ इंटरवल पे। अच्छा, अब एक इंटरवल में ले लेता हूँ 2 to infinity। सर एक मिनट। जी, सर जब भी ओपन इंटरवल आएगा तब क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं होगी? लेट अस सी। मैंने अभी ये एक ऐसा सेमी ओपन इंटरवल लिया है 2 to infinity, एंड लेट्स वर्क आउट कि 2 upon x क्यूब जो है इसका बिहेवियर क्या है over this interval. When x is close to 2, what's the value of this? 1/4. 1/4. 1/4. When x is very, very large, what's the value of this? 0. So this function is bounded between 0 and 1/4. अब जैसी तुम्हें ये मिला, इसका मतलब अब again from here down to this mod x minus y into 1/4. इसके बाउंड्स आ गए मेरे पास, तो 1/4 less than epsilon, and that means it is similar to this part. It is similar to this part. So we see that x minus y is less than 4 epsilon, which is delta. So आपने जो क्वेश्चन रेज किया था, मैंने उसी वक्त ये इंटरवल कंसीडर कर लिया था, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए, क्लोज इंटरवल पे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आनी ही आनी है। These are the semi closed or semi open intervals where हमें ज़्यादा परेशानी होगी, and we have to go deep into the problem. I think this describes what is uniform continuity and how we work out some problem. मैं आपको इस तरह के प्रॉब्लम से ज़्यादा किस किस्म के प्रॉब्लम में फंसा सकता हूँ, तो मैं फंसाऊंगा क्यों यार, तुमने क्यों, मेरे अपने बच्चे हो, क्यों फंसाऊं तुम्हें? Now you can look at this problem quickly. अच्छा, कभी x1 माइनस x2 लेता हूँ मैं, कभी x माइनस y लेता हूँ, कभी x माइनस a लेता हूँ। ये दोनों जो x कंसीडर किए जा रहे हैं, कभी मैं a माइनस b भी ले सकता हूँ। ये जो इंटरवल दिए मैं उसी के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए साहब, यहाँ पे फिर वही एक सेमी ओपन इंटरवल था, ओके, और हमने एलिमेंट्री अलजेब्रा के फॉर्मूले से इसकी फैक्टराइजेशन की, और ये वाला फैक्टर उठा के हम यहाँ नीचे ले गए, और अब हमने देखा कि डिनोमिनेटर जो है, व्हेन x and a are very close together, what will happen to this? Not only close together but large. ये 0 बन जाएगा। जी, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, सो लेस देन स्मॉल नंबर नहीं हो सकता, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। एंड मल्टीपल वेज वी हैव कंसीडर्ड अप टू नाउ। ये वाला प्रॉब्लम जो है, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम आई थिंक दैट आई एम कंसीडरिंग फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। लेट मी वर्क इट आउट हियर। नहीं, एनोटेशन के बजाय व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ। 10 इनवर्स को पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कंसीडर कर रहे हैं। So my function that I am working with is fx is equal to tan inverse x. इसका ग्राफ मैं आपको याद दिला दूं, एक ब्रांच यूं जा रही है, एक ब्रांच यूं जा रही है। tan inverse 0 is 0, और largest value of tan inverse is pi by 2 and smallest value is minus pi by 2. सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन से बताओ कि ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कि नहीं? लग तो रहा है, लग रहा है। वेरी Bounded है। गुड, वेरी गुड। यस सर। लेकिन इसकी एस्टेब्लिश करना जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। लेट मी शो यू द ट्रिक। ठीक है, हमने दो प्री इमेजेस ली, उनकी 10 इनवर्स ली। इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूं?
तो पता नहीं तुम लोगों ने ये फॉर्मूला कभी देखा कि नहीं देखा. Oh, sorry, it is what? It is minus. So minus tan inverse B is equal to tan inverse A minus B upon 1 plus AB. देखा है ये फॉर्मूला कभी? जी सर. बस. यस तो सर. इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इसको मैंने लिखा tan inverse x minus y upon 1 plus xy. And then I use an interesting thing. If x is close to y, this means x minus y is close to 0, and denominator doesn't matter, it is close to 1. Let me note it down. This is close to 1. So the argument of tan inverse is close to 0. This means what will be the behavior of tan inverse x minus y when x and y are very close? याद रहे कि tan inverse 0 is 0. So जिस तरह sin x upon x की हम कहते हैं कि लिमिट 1 है, इसी तरह this is close to x minus y. सर ये 1 plus x into y 1 कैसे अप्रोच कर रहा है? When x and y 1 are plus very x close squared नहीं together अप्रोच and करेगा. oh, 1 plus x square, okay, all right. But my point was what? X and y are close. और close के लिए मैं अगर यहाँ consider करूँ, they are both close to 0, so this will be close to 0. Or I should say that this thing is bounded between 0 and 1, or rather minus 1 and 1. तो जो कि mod में है, 1 plus this is bounded between 0 and पता नहीं क्या कहने लगा था. Sorry. सर आप बाउंड सा बता रहे थे. ये स्ट्रक्चर जो भी है ये डिनोमिनेटर में है. मैं ये बता रहा था कि छोटे से छोटा क्या होगा, ये 1. एक्स स्क्वायर की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, यानी एक्स एंड वाई दोनों करीब 0 के करीब हो सकते हैं. लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स एंड वाई बोथ आर लार्ज, तो इन्फिनिटी. इन आइदर केस ये जो स्ट्रक्चर है, दिस अपॉन दिस, स्मॉल और लार्ज. Let me conclude this here. So mod x minus y upon 1 plus xy is less than some small number if x minus y is less than some small number. बट द पॉइंट जो मैं जिस तरफ ले जा रहा था आपको, इसकी बाउंडेडनेस बताने के बाद बल्कि ये सारी चीज जो है मैं साफ कर दूं, दैट विल हम वेयर विद दिस, हम यहाँ पे थे. हमने सिर्फ इस वक्त एक पॉइंट अहम जो समझना है वो ये कि tan इनवर्स x माइनस वाई, हाँ पूरा स्ट्रक्चर ये है 1 प्लस एक्स वाई. इस एक्स वाई के लार्ज होने से ये पूरा मॉड में है. इस स्ट्रक्चर की लार्ज होने के बावजूद, जो कि टेनन के आर्गुमेंट के अंदर है, this argument is small even when x and y are large, because x and y are close. दो चीजें हैं जिनको हम अंडर कंसिडरेशन लेना है तो बात पूरी समझ में आएगी. एक तो ये कि x और y क्लोज हैं. क्लोज का मतलब है if x is 10,000 then y is say 1,000.001. This is y. Okay.
Now think about x minus y upon 1 plus xy. What it is? ऊपर का डिफरेंस आया 0.001, ये सब मॉड में है. डिनोमिनेटर क्या आया? 1 प्लस ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर. और ये जो मैं कंसीडर कर रहा हूं नीचे एक लार्ज नंबर आ रहा है इसमें. लेकिन इफ आई वर्क विद x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1.001, अब क्या आएगा? Zero. 0.001 upon 1 plus 1. 1 plus 1. ठीक है ना? So this is a small number. मगर हम इन नंबर से खेलने के बजाय इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सप्लोर करके हम कहते हैं कि tan inverse theta is almost theta when theta is small, and that makes tan inverse x minus tan inverse y less than, in fact, कहाँ पहुंचे थे हम? This is equal, sorry, this is equal to tan inverse mod में of x minus y upon sorry, ये व्हाइट बोर्ड में लिखने में ये प्रॉब्लम हो जाता है. x minus y upon 1 plus xy. So using this property, मैं इसको लिखता हूं कि this is almost equal to mod x minus y upon 1 plus xy, which has to be less than epsilon. Now, what's the largest possible value of 1 plus xy? Infinity. 1 plus xy. On one side it is 1. yes. On the other side, Infinity. okay. So what about 1 upon 1 plus xy? On one side, it is 0 and 1, sir. Yes. So you got the point, and x minus y into 1 upon 1 less than epsilon, and that makes x minus y less than epsilon. So epsilon and delta are almost same. ये 1 कहाँ से आ गया? 1 upon 1 plus xy. देखो भाई, x y की possible values क्या हैं? x y are values of x through spread on x axis. Okay. So x and y can be very, very small, in which case this whole thing will be greater than 1. तो हमने इसका लोअर बाउंड लिया अभी. जी. When x and y is very, very large, ये अनबाउंडेड है. ठीक है ना? हम पिछले में अपर बाउंड ले रहे थे ना, तो मैं समझी शायद लेना ही अपर बाउंड. नहीं, पहले मैं अभी इसको एज डिनोमिनेटर अलग से डील कर रहा हूँ. सर अभी भी तो अपर बाउंड ही लिया है. अरे तो बेटा गौर तो करो ना, अभी तो सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उसको मुझे रेसिप्रोकल बनाना है. आपने नीचे, हाँ आपने रेसिप्रोकल जब किया तो अपर बाउंड, हाँ तो रेसिप्रोकल किया तो क्या हुआ? लिया ना सर हमने. दिस इज 0 to 1 हो गया. हाँ, जब मैंने इसका रेसिप्रोकल तो 1 अपर बाउंड है, वही लिया हमने. हाँ वही लिया 1 upon 1. I should not have taken this one. तो वही तो लिया है, सारी में वही लिया हमने. 1 upon 1 plus या ये 1 ही लेना है, बस 1 लेना है सर. That's it. तो अब हमने सर पता चला मतलब था हमेशा अपर बाउंड ही लेना है. हाँ, x and y हमारा कंक्लूजन क्या है? देखें, पूरे प्रोसीजर को दोबारा समझ लें इस प्रॉब्लम के नुकसान से. मुझे fx माइनस fy के अंदर से किसी तरह से mod x minus y into something बनाना है.
सो इस प्रोसेस में हमने tan इनवर्स फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल वैल्यू के तौर पे हमने कहा कि दिस इज दिस एंड दिस इज दिस इज स्मॉल वैल्यू, सो tan इनवर्स थीटा इज थीटा। तो हमने x माइनस वाई निकाल लिया बाहर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। और अब x माइनस वाई के अलावा जो कुछ भी आ रहा है उसके बाउंड स्टडी किए और उसके बाउंड से पता चला कि अब ये जो 1/1 प्लस एक्स वाई है इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसको हमने 1 से रिप्लेस किया। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर सेम, x माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो दो मेजर कंपोनेंट्स क्या हो गए काम करने के। अच्छा, ये इंटरवल इंडिपेंडेंट है इन दिस केस। हमने tan इनवर्स जो है वो पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कंसीडर किया है और आपने ज्योमेट्रिकली पहली पहचान लिया था कि दिस हैज टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, सो इट हैज कम आउट टू। हाँ, मैं जो कह रहा था दो मेजर चाहिए, एक तो ये कि एफ एक्स माइनस एफ वाई जो है, किधर गया यार इसका, हाँ, इसके अंदर से एक फैक्टर एक्स माइनस वाई निकालना है। फंक्शन टू फंक्शन ये मैटर ये प्रोसेस डिफरेंट होगा, लेकिन x माइनस वाई किस तरह से निकालना है। बाकी जो इसका फैक्टर होगा उसके बाउंड्स देखने हैं। अगर वो बाउंडेड है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मिलेगी, अगर ये पार्ट बाउंडेड नहीं है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। दैट्स द पॉइंट। दैट्स ऑल अबाउट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। मैं कुछ मॉडल प्रॉब्लम्स बना के इंशाल्लाह इस वीकेंड जो है आप लोगों को दे दूंगा। आप उसको असाइनमेंट समझिए या आप उसको होमवर्क समझिए। प्लीज गो थ्रू दैट एंड लेट मी मूव फॉरवर्ड। एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं शेयर करूंगा, बट let us quickly look back at the idea of derivative. That is already 4-5 मिनट रह गए, चलो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं and then we'll have a break, a long break, and restart at around 6:10, 6:15. सर हम इतना लेट क्यों रिस्टार्ट कर रहे जी हैं? सर, वो 6:15 बहुत पे। मसला हो जाता है इतनी शाम में। अरे बेटा, मेरे साथ थोड़ा सा मसला हो रहा है आजकल। हमने घर शिफ्ट किया है, ओह अच्छा। तो मेरे लिए ऊपर नीचे, मेरी तबीयत ऊपर नीचे, घर के काम भी ऊपर नीचे, तो मुझे मेरा दिल चाहता है जिस वक्त मौका मिले मैं तुम लोगों से रब्ता करूं, लेकिन जाहिर है कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ता है ना। जी ठीक है सर, कोई बात जी नहीं। सर, कोई तो मसला हम नहीं है। कहते हैं कि फंक्शन डिराइवेबल, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन सम इंटरवल ए बी, देन फंक्शन इज सेड टू बी डिराइवेबल एट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल। देखिए, हम एलिमेंट्री लेवल पर कंटिन्यूटी भी और डेरिवेटिव भी पॉइंट वाइज इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आजकल हम इंटरवल पे बात कर रहे हैं। कंटिन्यूटी तो पूरे इंटरवल पे भी हो सकती है, क्लोज इंटरवल पे। इंटीरियर पॉइंट्स पर लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों लेने होंगे, लेकिन एंड पॉइंट्स पे लेफ्ट एंड पॉइंट पे राइट कंटिन्यूस और राइट एंड पॉइंट पे लेफ्ट कंटिन्यूस। लेकिन डिराइवेबिलिटी जो है उस पर हम सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स पे बात करेंगे। So f is said to be derivable at an interior point if this limit fx minus fc divided by x minus c, ये स्ट्रक्चर जो है इसकी लिमिट एज x अप्रोचेस एग्जिस्ट करे। और एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि ये लिमिट मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकालूं या राइट हैंड साइड से निकालूं, बोथ दीज शुड एग्जिस्ट एंड दे शुड बी इक्वल। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकालता हूं तो मैं इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहता हूं, जब मैं ये राइट साइड से निकालता हूं तो मैं इसको राइट हैंड डेरिवेटिव कहता हूं। और स्टैंडर्ड स्टेप्स हम यहाँ पे बना लेते हैं। जब भी हम लेफ्ट साइड से लिमिट निकाल रहे होते हैं तो x इज रिप्लेस्ड बाई जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं दैट माइनस डेल्टा, तो c माइनस डेल्टा ऊपर भी और नीचे भी। और जब राइट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो c प्लस डेल्टा टेक्स प्लेस ऑफ x, सो राइट हैंड डेरिवेटिव ये है। कोई फंक्शन डिराइवेबल होगा किसी पॉइंट पे जब ये दोनों लिमिट्स सेम आए। विद दिस इंट्रोडक्शन और रिवीजन हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे टू स्टार्ट विद के कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल या डिराइवेबल है या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे।
आप लोगों के पास ये नोट्स होंगे कि कुछ कह रहा है कोई? नहीं सर। अच्छा, मैंने कहा ये नोट्स होंगे, इनको देखते जाना, ब्रेक में थोड़ा देखते रहना। ये तुमने अर्लियर कैलकुलस कोर्सेज में ये देखा होगा कि मॉड एक्स ये डिराइवेबल नहीं है, x इक्वल टू 1, और ये भी देखा होगा कि अगर ग्राफ किस ऑफ द फंक्शन में जहाँ पे एक एज आता है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो हम उसी पॉइंट पर चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं है। विद दैट कमेंट, बिफोर गोइंग टू एनी थियरम, आई टर्मिनेट दिस सेशन, और इंशाल्लाह we'll meet again. मैं जैसे ही Zoom मीटिंग वो कर लूँगा फिक्स, तो I will